Hello dear student, today our topic is a vector. So what is a vector? So it is one of the very important topic regarding to your NCERT syllabus and competitive exam. Okay, so vector, what is a vector? So suppose we say our physical quantity, right? So our physical quantity are two types of physical quantity, right? First one is a scalar and another one is a vector. So what is the meaning of scalar physical quantity? That is a physical quantity which is defined with the help of magnitude only, or to define physical quantity only magnitude is required. Okay, so you can say only magnitude required, then such physical quantity is known as what? Scalar physical quantity. For that only magnitude is required. And vector, that means a physical quantity for that only, or you can say magnitude and direction both required, right? That is, to define vector, magnitude and direction both required, and to define scalar only magnitude is required. Okay, for example, suppose I say I applied force. So question arises, how much force is applied? Suppose I say 5 Newton force applied. In which direction? That is towards the north, towards the south, or particular direction, right? That is, for that magnitude and direction both required. Suppose I say I displace 5 meter. So in which direction? That is towards x-axis, y-axis, or z-axis. That is, for that magnitude and direction both required, right? So such physical quantities are known as vector. For example, you can say displacement, you can say force, you can say linear momentum, etc. So displacement, for example, it is denoted by S, force is denoted by F, linear momentum is denoted by P. So to differentiate between scalar and vector, we use arrow sign above the physical quantity. Okay, so it is a vector. Scalar, that is the only magnitude is required. Suppose I say that today's temperature is 30 degrees Celsius. So in which direction? No required. Only what? Magnitude is required. So it is known as what? Scalar. That is, for example, temperature. Another one, that is a mass. So what is the mass of this pen? Suppose you say 10 gram. In which direction? No required. That is, it required only magnitude. That's why it is a scalar quantity. Temperature, mass, density, etc. These are the scalar quantity. And simply no arrow, nothing is required. You can say temperature is denoted by T, mass is denoted by M, and density is denoted by rho. Okay, so it is a scalar and vector. तो वेक्टर को दिखाने के लिए हम एरो यूज करते हैं. सो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरो. व्हाट फ्रेंड्स? द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. दैट इज, सपोज आई से it is a vector, right? So it starts from O, it is move in the direction of P, that is, its direction is OP direction. Okay, you can say the name of this vector, that is a vector, right? So this point is known as tail of vector, and this point is known as head of the vector. Okay, so tail and head. Okay, it is known as tail and it is known as head of the vector. That is the tail of the vector and head of the vector, right? So this is between scalar and vector. Our next point, that is a types of vector. कितने तरह के वेक्टर हैं?
सो पहला, द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन दैट इज अ पोलर वेक्टर and another one that is a axial vector. Axial vector. So polar vector में क्या होता है कि उसका जो starting point fix होता है, right? For example, you can say it is a displacement vector, velocity vector, etc. momentum vector. So ये सब है polar vector. Okay, यहाँ पर जनरली हम polar vector ये चैप्टर में देखेंगे, और आगे जब रोटेशनल मोशन आएगा जिसमें होगा एक्सियल वेक्टर. स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है. दैट इज नोन एज व्हाट, पोलर वेक्टर. एंड एक्सियल वेक्टर कि सपोज कोई रोटेशनल मोशन होती है, फॉर एग्जांपल अर्थ की रोटेशन मोशन होती है. सो अर्थ की रोटेशन मोशन होती है एक एक्सिस के थ्रू, राइट. So for example, the rotation of earth take place or any rotation take place, right, like this. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये फिक्स एक्सिस है जिसके रेफरेंस से मोशन होती है. तो इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये केस में जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करेंगे उसको हम कहेंगे एक्सियल वेक्टर. दैट मीन्स ये वेक्टर होगी तो उसको हम कहेंगे एक्सियल वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से टॉर्क, you can say torque, it is denoted by tau, so it is a axial vector. Then you can say angular momentum, it is denoted by L, it is what, axial vector. मतलब जो एक्सिस से होगी उसको हम कहेंगे एक्सियल वेक्टर, और जो नॉर्मल है मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है उसको हम कहेंगे पोलर वेक्टर. तो देयर आर टू टाइप्स, एक्सियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर. ओके, अब हम पोलर वेक्टर में देखते हैं किस तरह से है. सो हियर द फर्स्ट वन दैट इज इक्वल वेक्टर. सी, यहाँ पर हमें जितने ज़रूरत होंगे उतने टाइप्स ऑफ फैक्टर देखेंगे. बाकी जैसे सपोज कोई एड ऑन होगा तो वो पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखते जाएंगे. द फर्स्ट वन दैट इज यू कैन से इक्वल वेक्टर और यू कैन से इट इज अ आइडेंटिकल वेक्टर. कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक वेक्टर ए है, यहां पर दूसरा वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. व्हाट यू कैन से, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. देन इट इज नोन एज व्हाट, इक्वल वेक्टर. You can say A vector, you can say B vector, both having a same magnitude and same direction. That's why it is known as what, equal vector. You can say for equal vector theta is equal to 0 degree. What is the theta? Theta is equal to 0 degree. Second one, that is you can say parallel vector. A vector having same direction. A vector having same direction, you can say P vector and Q vector, right? You can say same direction, then it is known as what, a parallel vector. That means यहाँ पर theta is equal to होगा once again 0 degree. मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, इट मे बी सेम और नॉट सेम, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. लाइक दिस P and Q vector, you can say this vector is also a parallel vector. You can say A vector and B vector, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, so they are known as what, parallel vector. Third number,
that is anti-parallel vector. So here you can say theta is equal to 180 degree, that is you can say it is the opposite direction. क्या कहेंगे हम? You can say it is opposite direction. मतलब एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो दूसरे वेक्टर की होगी अपोजिट डायरेक्शन. यू कैन से p वेक्टर एंड q वेक्टर. So they are known as what? Anti-parallel. This two vector is also known as anti-parallel vector. You can say a vector and b vector. बराबर? That means opposite direction. So theta is equal to होगा 180 degree. What is the theta? So theta is equal to 180 degree. So third one, that is the anti-parallel vector. Fourth number, perpendicular vector. So what is the perpendicular vector? That is the two vectors are perpendicular to each other. They are known as perpendicular vector. For example, a vector and b vector. Okay, so both are what? Perpendicular to each other. So here you can say theta is equal to 90 degree. It is what? Perpendicular vector. Fifth number, that is negative vector. What is the meaning of negative vector? That is the same magnitude but opposite direction. What you can say? Negative vector, that is same magnitude but opposite direction. It is known as what? Negative vector. कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है वेक्टर ए, अगर उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सो यू कैन से इट इज़ अ माइनस ए वेक्टर. कोई भी वेक्टर का आप नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है पी वेक्टर, तो उसका नेगेटिव वेक्टर होगा एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू कैन से इट इज़ अ माइनस पी वेक्टर. सो इट इज़ नोन एज नेगेटिव वेक्टर. द नेक्स्ट वन, जीरो वेक्टर. सिक्स्थ नंबर, what is the meaning of zero vector? Zero vector, that is a vector obtained by adding two vector having the same magnitude but opposite direction. A vector obtained by adding two vector having the same magnitude and opposite direction. For example, अगर हम ये दो वेक्टर को ऐड करते हैं, that is a vector plus minus a vector, so that is what? Zero vector. A vector obtained by adding two vector having the same magnitude but opposite direction, then it is known as what? Zero vector. Seventh number, that is a position vector. So what is the meaning of position vector? कि जो पोजीशन दिखाएगा, कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एंड y है एंड यू कैन से p इज अ पॉइंट हियर. p इज व्हाट? पॉइंट. तो ये पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करनी है हमें. सो वी नीड सम रेफरेंस. सो o इज योर रेफरेंस पॉइंट. सो यू कैन से OP वेक्टर that is equal to r vector, that is what? It is a position vector. What you can say? It is a position vector, right? That is a vector which represents the position. It is known as position vector. Eighth number, that is a displacement vector. मतलब वो displacement दिखाएगा. That means for example, अगर हम कंसिडर करते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है P पॉइंट टू Q पॉइंट, राइट? तो ये क्या हो रहा है? उसका P टू Q डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. So you can say it is a displacement vector. But reference हमारा क्या है? O. That means you can say it is a OP and OQ. These are the position vector.
So you can say it is a R1 and it is a R2. So what is the displacement vector? S vector, that is a R2 vector minus R1 vector, right? So it is a displacement vector. Okay, so here 8 अभी बाकी है, just 8. These are the basic thing. So polar vector में equal vector, that is the same magnitude and same direction, so theta is equal to 0 degree. Parallel vector, that is a same direction, same magnitude is not required, theta is equal to 0 degree. Anti parallel opposite direction में है, perpendicular एक दूसरे के perpendicular में है. Negative vector, that is the same magnitude but opposite direction, that is a vector minus a vector. Zero vector, that is a vector obtained, आपको definition लिखनी है, हाँ, a vector obtained by adding two vector having the same magnitude but opposite direction is known as what? Zero vector. Position vector, a vector which represents the position is known as what? Position vector. Displacement vector, a vector represent the displacement is known as what? Displacement vector, that is the displacement is final position minus initial position, right? So here it is a displacement vector. The next one, it is a unit vector. So what is a unit vector? See, the next one, it is denoted by u cap or u hat. A vector having a unit magnitude is known as unit vector. What is a unit vector? A vector having unit magnitude is known as unit vector. A vector having a unit magnitude is known as unit vector. Okay, for example, अगर ये है हमारे पास वेक्टर A, तो यही डायरेक्शन में मैं यूनिट वैल्यू का वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट? Then it is known as what? Unit vector of vector A. So what is a unit vector? It is denoted by u cap or u hat. ये इस तरह से u cap or u hat, that is equal to vector upon its magnitude. What is it? Vector upon its magnitude. खोखे में डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. That is a unit vector, that is a vector upon magnitude. It is denoted by u cap or u hat, that is a vector upon magnitude. So it is known as unit vector. थोड़ा देखेंगे डिटेल में यूनिट वेक्टर का क्या है. ओके, सो यूनिट मतलब 1. अगर 1 को हम कोई भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा नहीं. It remain as it is. If we multiply any value with unit, then it remain as it is. Okay friends, देखो ये कंसेप्ट हम ध्यान में रखते हैं. Now here, अगर हमें कोई भी पोजीशन या कुछ भी दिखाना है, then here we require this 3 axes, right? You can say it is a x axis, y axis and z axis. It is a reference point. अब ध्यान से देखो कि सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं दैट आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. जे कैप, व्हाट इज अ जे कैप? जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. रिमेंबर दिस, इट मस्ट बी आई ओनली, कोई भी रिप्लेस नहीं होगा. जे दैट मीन्स जे ही, दैट इज एसोसिएट विद द वाई एक्सिस. एंड के कैप, व्हाट इज द के कैप? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग z axis. Okay,
So unit vector along x axis, along y axis and along z axis, that is I cap, j cap and k cap. Okay, so I cap, j cap, k cap, they are the unit vector along x axis, y axis and z axis. अब ध्यान से देखो कि सपोज आई से दैट द वैल्यू इज 5, कोई भी वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है 5. व्हाट इज द 5? इट इज जस्ट नंबर ओनली. बट सपोज आई से 5 आई कैप, then what is the I cap? It is the unit vector along x axis. मतलब 5 magnitude along x axis, that is the magnitude and direction both. So it is what? It is a vector. So you can say it is a vector A, that is a 5 I cap. मतलब क्या हुआ? 5 magnitude along x axis. अब I cap से मल्टीप्लाई किया तो 5 वैल्यू एज इट इज रही, वो चेंज नहीं हुई, राइट? सो इट इज लाइक दिस. सपोज आई से -7. What is the -7? It is just number only. But I say j cap, then what you can say? 7 value along the negative y axis, that is the magnitude and direction both. That means it is a vector B. -7j vector होगा ये. आप कहोगे कि सर ये तो एक एक एक्सिस ही है. अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट 2, 3, तो कैसे रिप्रेजेंट करूं? बोलो. 2 दैट इज एक्स एक्सिस, ये क्या है? यू कैन से एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस. अगर मुझे 2, 3 को रिप्रेजेंट करना है देन व्हाट यू कैन से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, 3 वाई एक्सिस दैट मीन्स जे कैप, और बीच में दोनों पॉजिटिव है, सो वी कैन से 2i + 3j. ये वेक्टर हो गया. क्या हो गया? 2i + 3j. ओके, यू कैन से एनी वेक्टर दैट इज अ वेक्टर p इज इक्वल टू 2i + 3j. और देखते हैं कि सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है -5, 8 को, राइट? तो इसको हम कोई भी q वेक्टर बोल देते हैं. इट इज x एक्सिस एंड इट इज अ y एक्सिस. सो व्हाट यू कैन से -5i + 8j. ओके, सपोज यहां पर ऐसा है दैट इज अ 2 -3 एंड कोई भी ले लो 9. ओके, तो यहां पर ये रिप्रेजेंट हुआ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? k कैप. सो व्हाट यू कैन से, इसका रिप्रेजेंट किस तरह से होगा? सो यू कैन से r वेक्टर इज इक्वल टू 2 along x एक्सिस, -3 along y axis and 9 along z axis. That means 2i - 3j plus 9k. Okay, suppose आप कहते हो that is 7 0 -5, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन से 7i + 0j, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, -5k, right? So it is what? It is a vector, that is a unit vector. Okay, so it is the main important of this unit vector कि अगर हमें कोऑर्डिनेट में एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब इसका मैग्नीट्यूड. So what is the magnitude of A? You can say 5. Magnitude of B, that is what? 7. That is the modulus of vector. It is a positive value only. बट अगर 2 वेक्टर है तो उसके लिए पर्टिकुलर मेथड है, वो जो हमारे दूसरे टॉपिक्स में है. ओके, सो दैट विल सी हियर. ओके, डन. सो दिस आर ऑल द टाइप ऑफ वेक्टर. आगे देखते हैं हम, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर. व्हाट? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of vector. What is addition and subtraction of vector? Just see here, addition and subtraction of vector, जिसमें 2 तरह की मेथड है. वन इज अ ग्राफिकल मेथड एंड अनदर वन इज अ एनालिटिकल मेथड. तो पहले हम देखेंगे
ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में भी ए है ट्रायंगल मेथड, और यू कैन से ट्रायंगल लॉ of vector addition. What is it? You can say it is a triangle law for vector addition. So what is a triangle law? कि for example I wish to add two vector. For example one vector and you can say it is a another vector. I wish to add this two vector. You can say A vector और B vector. चलो कैसे ऐड करेंगे हम? I want to add using this triangle law. Okay, तो पहले A का इक्वल वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं. Okay, you can say it is a equal vector of A. You can say it is a OP vector. So what you can say? OP vector that is equal to A vector. Similar way, B का वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं. Okay, you can say it is a vector. You can say it is a B vector. You can say PQ. So what is the PQ? That is the PQ is equal to B vector. But यहाँ पर arrange कैसे करना है हमें? Tail, head. We place second vector such as the tail of vector B vector is at the head of A vector. बराबर है? मतलब B vector कहाँ पर रखेंगे हम? कि जहाँ पर A vector का head है, tail head, tail head, tail head, tail head, like this. अब क्या करना है हमें? ए वेक्टर की पूंछ को पकड़ना है और बी वेक्टर के सिर को पकड़ना है और वेक्टर ड्रॉ करना है. इट इज व्हाट? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. दैट मीन्स हियर यू कैन से ओ क्यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सो इट इज अ ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन. करेंगे? द थिंग इज वेरी इजी. ए वेक्टर बी वेक्टर, बट एक ही चीज ध्यान में रखनी है, टेल हेड एंड देन रिजल्टेंट. टेल हेड इस तरह से ही रखना है एंड देन इट इज अ रिजल्टेंट. चलो सपोज कहते हैं कि नेगेटिव, इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो, दैट इज ए माइनस बी करना है हमें. ओके, ये तो एडिशन हुआ. अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे? जस्ट हियर द थिंग इज वेरी इजी. इसको ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं. यू कैन से इट इज अ ओ पी वैक्टर. व्हाट इज अ ओ पी वैक्टर? सो यू कैन से इट इज अ ए वैक्टर. अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर पी क्यू दैट इज अ बी वैक्टर. अब हम क्या करेंगे? बी वैक्टर का नेगेटिव वैक्टर ड्रॉ करेंगे. सो बी वैक्टर का नेगेटिव वैक्टर, सो यू कैन से इट इज अ माइनस बी वैक्टर. व्हाट इज इट? माइनस बी वैक्टर. Tail head, triangle law. Now pick the tail of vector A and head of vector minus B. Then what you can say? It is a vector minus B vector. You can say it is what? Subtraction of vector. What you can say? It is a subtraction of vector. You can say OP vector that is equal to A vector, PQ vector that is a B vector, P Q dash that is equal to minus B vector, and O Q dash that is equal to A vector minus B vector. Right? So it is a graphical method में triangle law. Right? चलो दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल इट इज आई वांट टू ऐड दिस टू वेक्टर P वेक्टर एंड यू कैन से इट इज अ Q वेक्टर. तो कैसे ऐड करेंगे बोलो बेटा? सी हियर इट इज अ P वेक्टर, यू कैन से इट इज अ Q वेक्टर, टेल हेड. ओके, you can say it is the A to B. Now pick the tail of one vector and head of other vector. So you can say it is what? It is P vector plus Q vector. That is what? Triangle law. अगर हमें नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन करना है तो Q का नेगेटिव ले लेंगे. ओके, सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे? तो जस्ट वॉच हियर. यू कैन से इट इज अ OA, that is a P vector, A B
इट इज़ अ क्यू वेक्टर. चलो नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करते हैं. सो यू कैन से इट इज़ अ माइनस क्यू वेक्टर. यू कैन से इट इज़ अ बी डैश टेल हेड. जस्ट स्नैच इट. पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर. राइट. सो इट इज addition and subtraction of vector by triangle law. Triangle law of vector addition. Okay. अगर polygon है that is a more than 2 vector तो क्या करेंगे? Polygon of vector addition. सबको पॉज कर करके लिखते जाना है, नोट्स बनाते जानी है. ओके. Polygon of vector addition that is more than 2 vector. For example मेरे पास है वेक्टर A, वेक्टर बी, वेक्टर. ओके, इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ. वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी. ये सब वेक्टर को मुझे ऐड करना है. राइट. दैट इज मोर देन 2 वेक्टर. पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन. चलो किस तरह से करेंगे? सो जस्ट सी हियर. पहले ए वेक्टर. अब कैसे अरेंज करना है? बी वेक्टर दैट इज द टेल ऑफ वेक्टर बी इज एट द हेड ऑफ वेक्टर ए. यू कैन से इट इज अ बी वेक्टर. चलो सी वेक्टर कैसे ऐड करना है? ऐसे ही टेल हेड बनाते जाना है. यू कैन से इट इज अ सी वेक्टर और डी वेक्टर. ओके, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस डायरेक्शन. सपोज ये है आपका डी वेक्टर. ओके, इस तरह से हुआ. टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड. ओके, अब हम लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके, तो यहाँ पर ए वेक्टर की टेल, बी वेक्टर का हेड. दैट इज व्हाट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ट्राइंगल लॉ. अब क्या करेंगे? हम ए बी को हाइड करेंगे. अब ये लेना है हमें ए प्लस बी वेक्टर और ये रहा सी वेक्टर. सो टेल ऑफ ए प्लस बी एंड हेड ऑफ सी वेक्टर. तो ये वेक्टर मुझे क्या मिला? सो यू कैन से इट इज अ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. सिमिलर वे अब इसको हाइड कर लेते हैं. टेल हेड एंड देन रिजल्टेंट. सो इट इज अ रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर. Right? So it is a polygon that is more than 2 vector. मतलब यहाँ पर हमें खाली एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें वेक्टर अरेंज किस तरह से करना है. तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड जितने भी आते जाते हैं बस वही पैटर्न पे अरेंज करते जाओ. देन वी हैव दिस लॉ. इट इज अ ट्राइंगल लॉ. Our next law, that is a parallelogram of vector addition. It is a parallelogram for vector addition. Just check it. Vector addition. Parallelogram of vector addition. चलो, it is a different from a triangle law, but ultimately it is a triangle law. वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है. See, for example, I wish to add this 2 vector. Okay, so you can say it is a P vector and it is a Q vector. अब
यहाँ पर हमें ऐड करना है बाय यूजिंग दिस पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, P का एक आइडेंटिकल वेक्टर बनाएंगे। सो यू कैन से इट इज अ P वेक्टर, कैन से O A। अब Q वेक्टर को हम कैसे रखेंगे? सो ट्राइंगल लॉ में किस तरह से रखते थे, टेल हेड, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे टेल से टेल मिला, दैट इज द Q वेक्टर को हम रखेंगे इस तरह से कि दोनों की टेल O पॉइंट पर कनेक्ट हो। क्या होता है, दोनों की टेल O पॉइंट पर कनेक्ट हो। टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, P का पैरेलल वेक्टर एंड Q का भी पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लिया। यू कैन से इट इज अ P वेक्टर, you can say it is a Q vector. So OA, OB and it is a OC. तो ये हमें मिल गया पैरेललोग्राम। और इसका डायगोनल, that is what, AC. What is a AC? P vector plus Q vector. तो ये होगा पैरेललोग्राम। ओके, अब देखो ये Q वेक्टर है, Q वेक्टर है, तो Q वेक्टर का पैरेलल मतलब आइडेंटिकल AC, P क्या हुआ, Q। अगर आप इतना पोर्शन देखोगे, टेल हेड, सो इट इज द रिजल्टेंट, सो इट इज अ ट्राइंगल। बट हमें ओवरऑल देखना है, देन इट इज व्हाट, पैरेललोग्राम। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, राइट, तो कैसे करेंगे? तो इट इज अ सिमिलर वे। सब्ट्रैक्शन में you can say OA, it is a P vector, B, it is a Q vector। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, Q वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे। so what you can say, it is a minus Q dash। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका पैरेलल एंड पैरेलल ऑफ दिस, यू कैन से इट इज अ B डैश, इट इज अ C। तो यहाँ पर ये मिला मुझे डायगोनल, सो यू कैन से इट इज अ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, राइट। सो इट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, addition and subtraction of vector. First one, that is a triangle law, and second one, that is a parallelogram for vector addition. Okay, so graphical method में ये दो है। The next one is analytical method. Okay, so analytical method में क्या होगा, B method, that is analytical method। एक सिंपल है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं A वेक्टर को कंसीडर करता हूँ 3i प्लस 4j और B वेक्टर कंसीडर करता हूँ 2i प्लस 3j। अगर मुझे ये दोनों को ऐड करना है, दैट इज द A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो A वेक्टर क्या है, 3i प्लस 4j, B वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको कहता हूँ, आपको करना है, राइट। सिंपल है। सपोज आई से 2 प्लस 3, तो ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। बट यहाँ पर है आई कैप और यहाँ पर है जे कैप। अब ऐड कर सकते हो आप, दोनों डिफरेंट वेक्टर है। यू कैन से इट इज अ वेक्टर ए, यू कैन से इट इज अ वेक्टर बी, दैट इज अ 2 + 3 5। बट आई जे का क्या करेंगे हम, सो नो। तो ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास है 2i
प्लस 3i, सो दोनों एक ही एक्सिस पर है, सो यू कैन से इट इज अ 5i। हाँ, ये ऐड कर सकते हैं बट ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते। देखो कैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ 2i 0 1 2 एंड देन 3j 1 2 3 y एक्सिस पर, तो ये दोनों पॉइंट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पर 2 है, देन 3 4, अगर 2 है और ये 4 है, अगर ये दोनों को ऐड करना है तो यस 2 + 4 दैट इज 5 एंड 6, सो इट इज योर आंसर। इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अगर सेम एक्सिस पर है तभी हम जोड़ लगाएंगे, ऐड करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, दैट मीन्स यहां पर आई कैप, तो यहां पर भी आई कैप, so 3 + 2 that means what you can say 5i plus 4 + 3 that is a 7j, what you can say 5i plus 7j, we can add like this। okay, इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। अब यही पॉइंट को हम थियोरेटिकली कंसीडर कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये सेशन में सब हम थियोरेटिकल कंसीडर करेंगे और जब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो ये सब कंसेप्ट है वो हमें वहाँ पर अप्लाई करने हैं। दैट इज सपोज आई हैव अ वेक्टर ए वेक्टर ए एक्स आई बी वाई जे सॉरी ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप। मेरे पास वेक्टर है b इज इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। मेरे पास c वेक्टर है दैट इज द सी एक्स आई सी वाई जे प्लस सी जेड के। चलो, अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। चलो कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट सी हियर, a वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? a एक्स आई ए वाई जे ए जेड के प्लस b वेक्टर दैट इज b एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हम i के साथ i का ही एडिशन करेंगे, दैट इज यू कैन से ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस जेड का जेड के साथ, दैट मीन्स यू कैन से ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप। दैट मीन्स यू कैन से इट इज आर एक्स आई आर वाई जे आर जेड के। What is the Rx? That is the Ax plus Bx. What is the Ry? Ay plus By. And what is the Rz? Az plus Pz. Okay. सपोज चलो दूसरा हमें फाइंड करना है दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। वीडियो पॉज करो एंड फाइंड करो, राइट? चलो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के प्लस बी वेक्टर बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के माइनस सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। ए प्लस बी माइनस सी दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड इंटू के कैप। दैट इज वॉट आर एक्स आई आर वाई जे प्लस आर जेड के। वॉट इज आर एक्स? ए एक्स plus bx minus cx. What is the ry? Ay plus by minus cy. What is the rz? Az plus bz minus cz, राइट? तो ये हो गया आपका एनालिटिकल मेथड। ओके, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट ऐड दिस टू वेक्टर
कि ए वेक्टर है दैट इज द 2i माइनस 3j प्लस 5k एंड बी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन से माइनस 5i माइनस 2j प्लस 8k वेक्टर. वीडियो पॉज करो एंड फाइंड आउट द आंसर. से आर वेक्टर दैट इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. आपका आंसर कुछ इस तरह से आना चाहिए. 2 माइनस 5 माइनस 3i माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5j 5 प्लस 8 13k. इस तरह से आंसर आया, देन इट इज राइट. Okay, so it is the analytical method for vector addition.